Okay, students, really wish you all people are fine and really think your studies are going fine. In today's lecture, I'm going to talk you about gases again. और स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी 3.5.1 कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट प्रेशर on the wall of a container, on the if you're there in the room, they are exerting pressure on the wall of your room, or even if you're thinking about yourself, तो गैसेस जो हैं आपके फेफड़ों पे भी प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, इवन तो आपका जिस्म भी इसमें काउंटेबिलिटी में आता है. पर आज का जो टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. जैसे वी गॉट अ सिलेंडर, राइट, लेट्स से दैट वी गॉट अ सिलेंडर, and in that cylinder we got a lot of gases. Let's say a lot of means let's say a couple of gases like A and B, and you just need to know that A का क्या प्रेशर है कंटेनर पे, ठीक है, या फिर if you don't want to agree with A तो फिर आप B का प्रेशर जो है वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है. तो that is partial pressure because you're not trying to know about the pressure of both gases all together, but you're trying to know कि एक गैस का क्या प्रेशर होगा. So that's how Dalton states calculation of partial pressure of a gas, यानी you're trying to know about a pressure of a single gas. So students, if you want to calculate this kind of pressure, what do you know that you should know the mass of a gas. First of all, आप अगर A का प्रेशर मालूम करना चाहें, let's say that, तो आपको A का वजन बताना चाहिए कि सिलेंडर में A का वजन क्या है. Then secondly, you should know the moles of gas A. Let's say that if you want to calculate the moles, sorry, if you want to calculate the pressure, you need to know about the mole of gas A. And if you want to need to know the partial pressure of A, then you need to know about the total pressure and the total number of moles, right? Just need to know N, right? And you can just write T small around here. It literally means कि आप total moles की बात करें. इसके अलावा आपको number of moles of A भी पता होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको mass भी पता होना चाहिए A का, अगर आप A का partial pressure निकालना चाह रहे हैं, ठीक है. So that is topic number 3.5.1 on page number 55. अब इसमें जो है you can use equation which is called as general gas equation, ठीक है. Let's say that general gas equation is PV is equals to nRT, as everybody knows that, right? Or let's say that this equation for total pressure, right, and for the total number of atoms inside the cylinder. Let's say this equation, let's just say this equation number 1. Or if you want to calculate the partial pressure for gas A, then you have to write the same equation, but you just need to state A around it with the pressure and all that number of moles. So again, you will write the same equation again, and what you will write, PAV is equals to NA now, right, and RT. And in the same way, if you want to calculate the partial pressure of B, तो स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पे PBV और यहाँ पे NB और RT लिखना होगा. You know that temperature is always constant outside the cylinder in the atmosphere, और R भी general gas constant है, और volume भी जो है ये vary नहीं कर रहा. तो if you just think that thing, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी as all together. अब बुक के हिसाब से चलते हैं. they're saying कि आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, ठीक है. क्या करेंगे, आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. सो दीज आर द फर्स्ट टू इक्वेशंस, इनको हम डिवाइड कर देते हैं. लेट्स से दैट अब हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, PAV, जो सिलेंडर A वाली इक्वेशंस को आप न्यूमरेटर में लिख लें, ठीक है, और NART, ठीक है, और इसमें आप लिख लेंगे P टोटल वाली PTV. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लोकल टीवी चैनल, राइट, एंड दैट इज हाउ यू गोना मेक इट, ठीक है. अब ये आपने जो है इक्वेशन ड्राइव कर लिया. अब इसमें दैट द सेम थिंग्स विल बी कैंसल्ड आउट. आई थिंक ये चीज़ें जो है ये कैंसिल हो जाएंगी. अब पीछे जो आपके पास रह जाएगा विच विल बी समथिंग लाइक, इफ़ यू वांट टू नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो फिर आप A को यहीं रहने दें, और P जो डिविडेंड है just take it towards the another side, right? Just take it towards the another side. So I think this block can turn down into this block, which I'm writing again. So PA
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिविडेंड है, यहाँ पर आके मल्टीपल बन जाएगा. सो Na फॉर द टोटल नंबर ऑफ the gas A molecules and PT the total pressure. What they're saying, if you know the total number of A, right, as I told you in the beginning, and if you know the total pressure, then you can calculate the partial pressure of A. यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो वो आपके सामने होगा ये, ठीक है. So one more thing, right, I have just mistaken. I think so we cannot cancel out these two things, right? So I think that is the ratio. Sorry, I just forgot it. So what are you gonna say, that partial pressure of A, you need to know about the ratio of these two things, right? You need to know about the ratio of number of moles of A and the ratio of total number of molecules. That is called mole fraction, right? What do we call this? Mole फ्रैक्शन, राइट. अब मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको जो है थोड़ा आइडिया हो जाएगा. तो अब साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो किसी भी मतलब इंडिविजुअल गैस, वी हैव अ लॉट ऑफ गैसेस इन अ सिलेंडर, किसी भी एक गैस की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस देन यूनिटी होते हैं, यानी 1 डिजिट से नीचे आते हैं. एंड इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द टोटल, तो दे आर इक्वल टू यूनिटी. आपने ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है. यानी कि इनका जो ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है, इसको आप एक ही सिंबल से शो कर सकते हैं. सो लेट मी मेक अनदर ब्लॉक फॉर यू. आई होप you're following me. Okay, let me erase this thing. Okay, so let's go to the next block for the next equation, and we're gonna say here PA is equals to X, I think, right? I'm gonna use the word X for this mole fraction. Yeah, exactly. If you want to calculate the number of partial pressure of A, then you have to say it XA, and PT is total pressure. So that's the equation, guys. That's the equation by which you can calculate the partial pressure of any gas. इसको हम प्रूव करेंगे. इसमें हम जो है if we're gonna talk about a numerical, the next example हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को थोड़ा सा ज़ेरे बहस लाएंगे. अगर आप B करना चाह रहे हैं तो नोट अ बिग केस नाउ, यू हैव टू प्लेस B अराउंड हियर एंड X मोल फ्रैक्शन B का बन जाएगा, एंड यू जस्ट डू इट लाइक दिस. तो ये अब मतलब अगर आप इसका करना चाह रहे हैं, इफ यू नो द मास ऑफ दिस, इफ यू नो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ दिस गैस, देन यू कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस. एंड पार्शियल प्रेशर को थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें, अगर किसी ने कोई वज़न उठाया हुआ, लेट्स से दैट वी गॉट अ वेरी बिग वेट. आपने दो हैं जैसे जिम में जा रहे हैं अफराद, तो उन्होंने बहुत बड़े भारी भरकम वो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए रॉड्स होते हैं वो उठाए. अब दो अफराद ने उठाए हैं. इट्स मीन दैट कि जो दोनों अफराद हैं, दे आर पुलिंग, दे आर अप्लाइंग द फोर्स टू टेक इट अप. तो आई डोंट थिंक सो कि एक फ़र्द जो है उसको उठा सकता है. तो इट मीन्स दैट कि वो दोनों फ़र्द जो है उसको उठा रहे हैं, यानी अपनी अपनी फोर्सेस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. और वो तो इसी तरह से गैसेस जो होती हैं, दे आर अप्लाइंग अ प्रेशर, और डिफरेंट गैसेस होती हैं तो यू कैन से दैट दे हैव डिफरेंट प्रेशर्स. और अगर आप किसी एक गैस का प्रेशर निकाल लेते हैं तो दैट लिटरली मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर. सो दैट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस. एंड आई रियली विश आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की. और यूनिटी वाली बात भी याद रखिएगा. इसका किसी भी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस देन यूनिटी होते हैं किसी भी गैस के. और जो मोल फ्रैक्शन है, दैट वैल्यू इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, राइट. दैट वैल्यू इज नोन एज मोल फ्रैक्शन. और ये मोल फ्रैक्शन जो है ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. सो दे हैव रिटन इन द लास्ट टू वर्ड्स ऑफ दिस पेज. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, गाइस. आई एम गोना टेक यू with my next lecture in an example, and my question is that you just give any kind of common example like our lungs, कि उसमें जो we got a lot of gases in our lungs to in a major way, जिसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, उनका भी हमारे फेफड़ों पे पार्शियल प्रेशर होगा कुछ ना कुछ. आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करने इस टॉपिक के ऊपर आप मुझे बताएं कि फेफड़ों पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है. ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में तो मैं आपको डाल्टन के जो यूजेस हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास 3.5.2 एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. उसमें मैं ऑक्सीजन का तो बता दूंगा और नाइट्रोजन का मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताना. आपने थोड़ा सर्च करके मुझे बताना. इन कमेंट्स आप मुझे लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, गाइस.